سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ سچا ولی کون ہوتا ہے، اللہ کا سچا ولی کون ہے اور سچا پیر کون ہے۔ تو اس مسئلے پر بہت ساری ویڈیو بنتی رہتی ہیں، وہ ان کے پیر کا برائی کر رہا، وہ ان کے پیر کا برائی کر رہا۔ تو چلیے اس حوالے سے ہم پورا بیان سنتے ہیں حضرت کی زبانی۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو اولیاء اللہ کو لوگ بدنام کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا قصور ہے، ہم اہل سنت کا کہیں قصور ہے، بے شک کیونکہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ علم والے نہیں ہیں، جو کم علم لوگ ہیں، وہ کسی کو بھی ولی بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ بالکل تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہر نیک آدمی ولی نہیں ہوتا، بے شک یہ بات یاد رکھنا، ہر نیک آدمی ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی نیک ہوتا ہے۔ بے شک تو بے شک حق ہے۔ ہم لوگ اپنے پیر لوگ کی محبت میں یا اپنے مقرر لوگ کی محبت میں کہتے ہیں کہ یار میرا پیر ولی ہے، جی تو ہم آپ کے لیے ولی ہے، لیکن آپ اس کو پوری دنیا سے ولی مت بنوائیے، کیونکہ اس کے اندر کچھ کمیاں بھی ہو سکتی ہے۔ جی 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 جیسے مثال کے طور پر مقرر لوگوں کو دیکھا، یعنی ہمارے یہاں اتنا بڑا دل ہے نا میری قوم کا، جی حضرت، ہر مقرر خطیب اعظم، جی جی ہر جی جی ہر عالم علامت الدہر، ہر پیر شیخ المشائخ، یہ عادت چھوڑ دیجئے۔ جی حضرت، دیکھیے ایک ہوتا ہے عقیدت اور ایک ہوتا ہے عقیدہ۔ عقیدت کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، لیکن عقیدے کے لیے دلیل چاہیے۔ جیسے عقیدت میں میرے ابا کو قبلہ کہوں، کعبہ کہوں اور جو بھی کہنا ہے کہوں، یہ عقیدت ہے، لیکن یہ صرف میرے لیے ہے، عقیدت صرف میرے لیے۔ لیکن جب میں کسی بے چیز شک کو عقیدے کے طور پہ پیش کروں گا تو اس کے لیے قرآن اور حدیث کی دلیل چاہیے، ہے نا۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ یہ اولیاء اللہ کا معاملہ صرف عقیدت کا نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق تو عقیدے سے تھا۔ ہم لوگوں نے کیا کیا، جو لوگ گانجا پی رہے ہیں ان کو بھی ولی کہنا شروع کیا، جو چرس پی رہے ہیں ان کو بھی ولی کہنا شروع کیا، جو ننگے دھڑنگے پھر رہے ہیں ان کو بھی ولی کہنا شروع کیا، اور کچھ لوگوں نے مفاد پرستی کی بنیاد پر کہ چندہ خوب آئے گا تو عرس، سب کا عرس، جو پیر مر رہا ہے اس کا عرس ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ بھی کچھ بکا جا رہا ہے، سب کے گنبد بن رہے ہیں۔ میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، جی حضرت، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ برا مت ماننا کہ کسی بھی آدمی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو ہم غیبت سمجھتے ہیں، جی لیکن گنبد سب کے نہیں بے بنتے، شک بے شک بے شک، عرس سب کے نہیں ہوتے، گنبد صرف ولیوں کے بنتے ہیں، عرس بھی صرف اللہ والوں کے ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک، مگر ہم لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں، وجہ عرس کرو پیسہ اکٹھا کرو، گنبد بناؤ پیسہ اکٹھا کرو، مزار بنا کے مجاوری کرو پیسہ اکٹھا۔ اگر ہم پیسے کے چکر میں اپنے دین کو مشکوک کر دیں گے ہم تو مر جائیں گے، لیکن اگر یہ دین مشکوک ہو گیا معاذ اللہ کچھ لوگوں کی نظر میں اور وہ دین سے متنفر ہو گئے، دین چھوڑ کر چلے گئے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آج میں آپ کے سامنے ولی کون ہوتا ہے اس کو پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ ہمارے مرشد قطب الاقطاب، غوث الاغواث، شیخ الشیوخ، غیاث الکونین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ، عنہ سبحان ارشاد اللہ، فرماتے ہیں، سبحان اللہ، غوث پاک فرماتے ہیں جب تک کسی انسان کے اندر 12 بے صفات شک پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ بے دیکھو شک، میں جو عام طور پہ جو میں تقریر کرتا ہوں آج اس طرح تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نوجوان جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں ان میں بہت زیادہ لوگ سنجیدہ ہیں۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے، انسان دیکھ کر پوری باندھتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات؟ یعنی جیسا مجمع ہوتا ہے اسی کے مطابق ہم چاہتے ہیں تقریر کریں۔ آپ لوگ شور نہیں کر رہے ہو نا تو ہم بھی شور نہیں کریں گے، آپ کو اچھے سے سنائیں گے، لیکن آپ غور کرنا اس پر۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس غوث اعظم کے در سے ولایت بڑھتی ہے جو خود حق ہے، ولی بناتا ہے، بے شک حق ہے، تو وہ خود فرما رہے جب کسی انسان کے اندر 12 چیزیں جمع ہوتی ہیں تب وہ اللہ کا
वली होता है। बेशक 12 में से एक भी अगर कम हुई तो वो नेक तो हो सकता है मगर वली नहीं हो सकता, बेशक है ना। बेशक अब बेशक इसका अब कौन वली होता है, तो अब मुर्शिद गौस पाक की बात सुन लो जल्दी जल्दी से, बहुत टाइम भी नहीं लूंगा। फरमाते हैं वली में दो सिफात अल्लाह की होती है, यानी वो अल्लाह की दो सिफात का मजर होता है, वो रसूलुल्लाह की दो सिफात का मजर होता है, वो सिद्दीक अकबर की दो सिफात का मजर होता है, वो फारूक आजम की दो सिफात का मजर होता है, वो उस्मान गनी की दो सिफात का मजर होता है, बेशक वो बेशक मौला अली की दो सिफात का मजर होता है। बेशक यानी बेशक चारों खुलफा की दो दो सिफात कितनी हो गई, 8। रसूलुल्लाह की दो सिफात कितनी हो गई, 10। अल्लाह की दो सिफात कितनी हो गई, 12। यानी जब तक वो 12 सिफात का मजर ना हो जाए उस वक्त तक वो अल्लाह का वली नहीं होता है। अब सैयदना गौसे पाक ने चारों खुलफा की दो दो सिफात बयान की, मतलब क्या बयान किया, वली न कभी राफसी बन सकता है, न वली कभी नासबी बन सकता है, बेशक बेशक वली नासबी भी नहीं बन सकता, राफसी भी नहीं बन सकता। बेशक। जो वली बनेगा वो अहले सुन्नत व जमात में से बने। क्या बात है हजरत, इसलिए माशाअल्लाह कि माशाअल्लाह। नासबी की अहले बैत से नहीं जमती है, जी, नासबी जी। की अहले बैत से नहीं जमती, और राफसी की सिद्दीक उमर से नहीं जमती। बेशक। हालांकि जब तक इनकी सिफात पैदा न करे उस वक्त तक वो वली नहीं हो सकता। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर पूरी उम्मत जिनकी विलायत पर मुत्तफिक है, सारे वलियों को पढ़कर देख लो, सबका ताल्लुक न नासबियों में होगा न राफसियों में होगा। हर वली आपको सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में नजर आएगा। हक है, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाह जमालुल औलिया को देख लीजिए, उनका ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से है ना। इसी तरीके से आप महबूब इलाही को देख लीजिए, उनका ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से। इसी तरह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देख लीजिए, उनका ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को देख लो, उनका ताल्लुक भी अहले सुन्नत व जमात से है। 90 लाख मुनकिरों को ईमान की दौलत अता करने वाले गरीब नवाज का ताल्लुक भी अहले सुन्नत व जमात से। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अब सुभान आपको अल्लाह। पता चला जिनके अंदर वली जैसे हीरे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। और राफजियों को भी चैलेंज करता हूं, एक वली लाकर बता दो, क्या बात है एक हजरत, वली, बेशक एक बेशक। वली बता दो अपनी जमात में जो तुम्हारे अकीदे की तायीद करता हूं, नहीं मिलेगा। सारे वली अहले सुन्नत में हक मिलेगा। है, बेशक अब बेशक। बताओ आपको वो रास्ता चलना है जिसमें कोई वली ही नहीं, या वो रास्ता चलना है जिसमें वली ही वली है। बेशक ये बेशक फैसला आपको करना है ना, बेशक ये बेशक। फैसला आपको करना है। और राफसियों ने ढूंढ ढांड कर एक वली निकाला था, कहा कि लाल शहबाज कलंदर हमारी जमात की वली है। तो लाल शहबाज कलंदर के बारे में हमने पूछा कि लाल शहबाज कलंदर का नाम तो बताओ। लाल शहबाज कलंदर कोई नाम थोड़ी होता है, ये तो उनका लकब है। राफजी ढूंढ ढांड करके लाए एक वली को, कहा ये हमारा वली है। हमने कहा आपका है, कब्जा आपका हो सकता है दरगाह पर, लेकिन पहले उसका नाम तो बताओ, नाम क्या है। जब नाम ढूंढ करके लाए तो क्या नाम निकला, सैयद उस्मान मरवंदी। मैंने कहा राफजी लोग तो उस्मान नाम रखते ही नहीं, ये नाम भी तो अहले सुन्नत व जमात का है। वाह वाह वाह, ये नाम भी तो अहले सुन्नत व जमात का है। तो लाल शहबाज कलंदर सैयद बादशाह जरूर है, लेकिन उसका नाम भी क्या है, उस्मान है। और उस्मान नाम आपको कभी राफसियों में नहीं मिलेगा। अबू बकर नाम आपको सुन्नियों में मिलेगा, उमर नाम आपको सुन्नियों में मिलेगा, उस्मान नाम आपको सुन्नियों में मिलेगा। अब आपको इतना पता चल गया राफसी ये नाम नहीं रखते। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अब सुन्नी कौन कौन, तो अल्लाह अकबर, हम मौला अली के घर में देखते हैं तो वहां पर अबू बकर नाम का बेटा भी मिल रहा है, उमर नाम का बेटा भी मिल रहा है, उस्मान नाम का बेटा भी मिल रहा है। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए। तो इसलिए वो रास्ता इख्तियार करो जिस रास्ते पे मौला अली थे, वो रास्ता इख्तियार करो जिस रास्ते पे इमाम हसन थे, वो रास्ता इख्तियार करो जिस पर इमाम हुसैन थे। अब वो 12 सिफात कौन सी है उसको सुन लीजिए। 2 सिफात, अल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है। अल्लाह की 2 सिफात क्या है, सिफत सत्तारी, सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी। सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी, यानी जो वली होगा सत्तारी सिफत का मजहर होगा। सत्तार किसको कहते हैं, ऐब छुपाने वाला। यानी जो वली लोग होते हैं ना, वो लोगों के ऐब जाहिर नहीं करते, वो लोगों के ऐबों पे पर्दे डालते हैं। जी जी। अब आप इसमें चेक कर लीजिए
कितने रदी अल्लाह और कितने रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकल रहे हैं, देखिए। जी 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 जी, क्या बात है हजरत। हैं? जी 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 गौर जी। कीजिए ना, इसलिए कि हाथ में तस्बीह और बगल में मुसल्ला, इससे वली नहीं बनता, अल्लाह के शान सत्तारी का मजहर बनता है, यानी वो किसी का ऐब खोलता नहीं है। इसीलिए आप देख लें, वली लोग कभी आपको किसी की गीबत करते नहीं मिले। बेशक बेशक। वली लोग कभी किसी के ऐब से, वो ऐब पे पर्दे डालते हैं। कैसे पर्दे डालते हैं उसकी एक मिसाल बताऊं आपको, देखिए कैसे पर्दे डालते हैं। एक बहुत बड़े वली हैं हजरत हातिम असम, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नफातुल उन्स में ये वाकया लिखा, आप भी वली बन सकते हो, विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ, वली आप भी बन सकते हो। 12 सिफात सुन लो, अपने अंदर पैदा करो, कोशिश करो। अल्लाह पाक की बारगाह में फैजान बंद नहीं होता, बल्कि वो तो ये फरमाता है जो मेरी तरफ चल कर आता है, मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। कोशिश करो ना, अल्लाह फरमाता है जो हमारी राह में कोशिश करते, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उसके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं। और सैयदना इमाम जाफर सादिक अला जद्दी वाले सलाम फरमाते हैं, अल्लाह तक पहुंचने के इतने ज्यादा रास्ते हैं, जमीन पर जितने बिखरे हुए जर्रात हैं उससे ज्यादा अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते मौजूद हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद। कोशिश करो अल्लाह तक पहुंचने की, कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि अल्लाह तक पहुंचना बहुत आसान है, विलायत का निसाब बहुत आसान है। बेशक तो हातिम असम के बारे में अल्लामा जामी लिखते हैं, हातिम असम, असम अरबी जबान में बहरे को कहते हैं, बहरा। इन्होंने अपना लकब क्या रखा था, हातिम बहरा। कोई बहरा भी हो उसको बहरा बोलो तो बुरा लगता है कि नहीं लगता। जी जी जी। लेकिन हजरत हातिम बहरे नहीं थे, अपने आप को बहरा कहलवाते थे। वजह, कितनी खूबसूरत वजह, उसको सुनो आपको मजा आएगा। एक बूढ़ी औरत, बुढ़ी, हातिम असम से मसला पूछने आई। उनको उस वक्त तक असम नहीं कहते थे, हातिम कहते थे। तो हजरत हातिम के पास मसला पूछने आई, उसके पेट में कुछ गड़बड़ थी, तकलीफ थी। तो अब तकलीफ की वजह से उसके पेट की जो है वो गैस खारिज हो रही थी। तो उसने सोचा कि शर्मा गई, मेरे नबी की उम्मत की ये औरत शर्मा गई। तो आपने कान पे हाथ रख के कहा, बड़ी अम्मा जरा जोर से बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो। तो उसने बोला, उसने जब बोला तो आपने कहा जरा और जोर से बोलो। तो उसने फिर बोला और जरा जोर से बोलो। उसने और जोर से बोला। अब वो शर्मिंदगी उसकी खत्म हो गई और वो बुढ़िया खुश हो गई कि जो मेरे मुंह की आवाज नहीं सुन सकता वो हवा की आवाज कैसे सुन सकता है। और आप पूरी जिंदगी बहरे बन करके गुजारते थे। लोगों ने पूछा आप बहरे नहीं हो, लेकिन बहरे बन के क्यों जिंदगी गुजार रहे हो। फरमाया मुझे बहरा कहलाना आसान है, लेकिन नबी की उम्मती में से किसी को शर्मिंदा करना मुझे पसंद नहीं है। अकबर, अल्लाह, क्या बात है हजरत। एक औरत की शर्मिंदगी के खात्मे के लिए पूरी जिंदगी बहरा बन करके गुजार दिया, ये हजरत हातिम असम है। और आज हम लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों के ऐब भी खोल रहे हैं। तो आप ऐब खोल के क्या है, वली नहीं बन सकते, अल्लाह के दोस्त नहीं बन सकते। अगर वली बनना है, लोगों के ऐब पे पर्दे डालना सीखो, शान सत्तारी का मजहर बनो, किसी के ऐब न खोलो। आजकल तो हम जहां बैठते हैं ऐब खोलते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम जब तक लोगों के ऐब खोलते रहोगे, तुम लोगों के ऐब अपनी हैसियत के मुताबिक खोलोगे, अल्लाह तुम्हारे ऐब अपनी शान के मुताबिक खोलेगा, अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा। और अगर तुमने लोगों के ऐबों पे पर्दे डाले, तुम लोगों के ऐब पे पर्दे डालोगे, अल्लाह तुम्हारे ऐब पे पर्दे डालेगा। आज मुसलमान लोगों के ऐब पे पर्दे नहीं डालते। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, सपोर्ट करें हमारे चैनल को। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर जरूर अता करेगा, क्योंकि ये एक इस्लामिक चैनल है और इस्लामिक बयानात रहते हैं इसमें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।